19th century, that was the age of, at this age only the novels become very popular, because at first you see that was the age of the poetries, the drama, okay, and the prose and the novel becomes popular in 19th century. 19th century was the age where the people, actually it was a glorious age. So many things were actually flourishing at that time, economically, socially, okay, and religiously. Even the life, the standard of the people all were increasing. The writer like Charles Dickens, okay, they can be said, the writers with a note of autobiography, with a note of a realism, with a note of psychology. You can see the traces of psychology also in their writings. Then humor and pathos, so many characters. The characters also they chooses from the real life. Okay, Dickens is said to be the writer of the lower middle class people. बहुत रईसों की, बहुत रिच लोगों को वो अपने वो नहीं बनाता है, ठीक है. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मीन्स, डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी? क्या होता है बोलो? जीवन के ऊपर अपने अपने he takes, actually he takes the real life characters, somewhere related to his own life, sometimes the characters, sometimes the situations, sometimes the incidents. You can see a little traces of autobiography in him. Then I said, I just used one term, psychology. Now what is that psychology presented by the writer? Okay, there are two types of writer. The one writer who actually present the psychological aspect of the character also. मतलब वो राइटर, वो जो उसका जो करेक्टर है, जो हीरो है, जो हीरोइन है, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है. व्हेन दे रिप्रेजेंट ऑल दिस, दे आर सेड टू बी द साइकोलॉजिकल राइटर. एंड सम राइटर्स आते हैं जो सिर्फ आपको एक स्टोरी बताएंगे, उनकी फीलिंग्स पे नहीं जाते. दे डोंट पेनिट्रेट beneath their hearts of the characters. Okay, superficially ऊपर से स्टोरी बताते, they are not said to be the psychological writer. Charles Dickens is said to be a psychological writer also. Why? Because especially he narrates the story from the very beginning, from the childhood of his protagonist. तो बच्चों की साइकोलॉजी पे, चाइल्ड साइकोलॉजी वो बहुत अच्छे से समझते हैं. Sometimes the critique also says, that a writer with such a age, if he just understands the child psychology, कि बच्चों की भावनाओं को, बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, बच्चों को कैसा लग रहा है, अगर उस बारे में बात करता है तो that is something very tremendous. Okay, so that goes on. And then very striking feature of the Charles Dickens is about his humor and pathos. What is humor and pathos? ह्यूमर नहीं जानते आप क्या होता है? हंसी मजाक करते हैं ना हम लोग, कहते हैं इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमर. एंड व्हाट इज पैथोस? अपोजिट. क्या होता है ह्यूमर का अपोजिट? दुख. ओके, ह्यूमर एंड पैथोस. सो ह्यूमर एंड पैथोस इन Dickens, it runs side by side. It is said, if you read Dickens, there will be tears in your eyes and a smile on your lips at the same time. What does that mean? कि जब आप डिकेंस पढ़ते हैं तो एक ही समय में आपकी आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान रहती है. यू फील एट द सेम टाइम. ओके, हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. ह्यूमर इज डिफरेंट, पैथोस इज डिफरेंट. ठीक है, ह्यूमर कर रहा है कि हम बहुत अच्छे मूड में हंसी मजाक कर रहे हैं, दुखी हैं तो पैथोस, पैथेटिक है, पैथोस है. एक साथ कब होता है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे आप कि कभी आपने ऐसा फील किया होगा कि दुख और खुशी एक साथ फील होती है? एनी एग्जाम्पल? सोचो, आपने ना भी फील किया हो. इफ यू कैन गिव मी एनी एग्जाम्पल ऑफ इट. नहीं. घर में भाई बहनें हैं, जब लड़की की शादी होती है और जब विदाई होती है तो उस समय आप घर में जो विदा करते हैं, माँ बाप रोते हैं ना, रोते हैं, दुख होता है और खुशी भी होती है. तो वो कैसा एग्जाम्पल होता है? ह्यूमर एंड पैथोस रनिंग साइड बाय साइड. ओके, सो दैट वंडर इज एक्चुअली डन बाय डिकेंस. डिकेंस हमेशा उन दोनों को, दे आर इंटरमिंगल टुगेदर, एक साथ चलता है ह्यूमर एंड पैथोस.
ठीक है। अब देखिए, पैथोस तो एक ही तरीके का होता है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बट ह्यूमर इज ऑफ 3 टाइप्स इन राइटिंग्स: ह्यूमर ऑफ डायलॉग्स, ह्यूमर ऑफ सिचुएशन, ह्यूमर ऑफ करेक्टर। मूवीज देखते हैं, डू यू सी मूवीज? मूवीज में कोई जॉनी लीवर टाइप का कोई आ जाता है तो आपको उसको देख के थोड़ी हंसी आने लगती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमर ऑफ करेक्टर। फिर ह्यूमर ऑफ डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि आपको उसको सुन के हंसी आती है, दैट इज ह्यूमर ऑफ डायलॉग्स। ह्यूमर ऑफ सिचुएशन, कुछ पिक्चरों में देखो सिचुएशन ऐसा बनाते हैं कि चलते चलते वो एकदम से फिसल गए, फिर वो हो गया ना, तो वो क्या होता है? सिचुएशन। तो ह्यूमर वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स: ह्यूमर ऑफ सिचुएशन, ह्यूमर ऑफ इंसिडेंट्स एंड ह्यूमर ऑफ ह्यूमर ऑफ सिचुएशन, ह्यूमर ऑफ डायलॉग्स एंड ह्यूमर ऑफ characters. And Dickens normally use 2 things: humor of dialogues and humor of characters. Though his humor of dialogues are always intellectual, on the side of intellectualism. मतलब वो जो कहते हैं ना कि ह्यूमर एक प्लेन ह्यूमर होता है, एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल ह्यूमर होता है, तो उस तरीके का ह्यूमर है, ठीक। Then the writer's main purpose is what is the purpose of the writer? Purpose of the, as I told you, literature is the mirror of the society. Literature क्या है? सोसाइटी का mirror है. If it is the mirror of the society, it reflects what are the things prevailing in the society. अगर आप शीशा देखते हो तो अपनी छवि देखते हो ना, वैसे लिटरेचर ऐसा होता है कि जब आप लिटरेचर को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो जब भी आप इनका देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है व्हाट इज थिंग्स प्रिवेलिंग ऑन द सोसाइटी। अगर आज का अखबार उठाते हो, इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर ऑफ टुडे, इस समय क्या हो रहा है दुनिया में, देश में, शहर में, आपको पता चलता है। दैट मीन्स वो कहाँ का रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऑफ दिस एरा। तो जब ये 19th सेंचुरी में इफ द राइटर इज राइटिंग, तो वो कहाँ का दिखाएगा? 19th सेंचुरी का। आगे चल के या पीछे चल के तो लिखेगा नहीं। ये जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिकन्स एज अ राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर देयर, सो ही एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स व्हाट आर द थिंग्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, तो वो आपको लिखना है, उसमें रियलिस्टिक उस पर आ जाता है। देन आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग, डिकन्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल राइटर, ही इज ऑल्सो सेड टू बी द ऑटोबायोग्राफिकल। आपने कहा ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपने ओन उससे लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बोला जाता है डिकन्स के लिए, द पेन बाय विच चार्ल्स डिकन्स राइट्स इज ऑफन डिप्ड इन हिज ओन ब्लड। व्हाट डज दैट मीन? जिस पेन को डिकन्स यूज करता है वो उसके खुद के खून से डूबी रहती है। इसका क्या मतलब होता है? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। ह्यूमर एंड पैथोस इज देयर, ऑटोबायोग्राफिकल इज देयर। अगेन इफ यू कम टू द प्लॉट एंड द थीम्स, प्लॉट समझते हैं ना, पहले एक प्लॉट चुनते हैं, प्लॉट समझते हैं कि नहीं? व्हाट इज प्लॉट, है ना। तो जब वो प्लॉट आप जब चूज करते हो तो वो प्लॉट में भी देखिए सिंप्लिसिटी ऑफ द प्लॉट रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लॉट रहता है। इन डिकन्स वी सी द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्लॉट एंड द कैरेक्टर्स, एंड इट्स वेरी वेल वुवन प्लॉट, एक्चुअली वेल नेटेड प्लॉट। कहीं भी आपको लूज एंड नहीं दिखते। अब फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आप समझ पाओगे। कोई मूवी देखते रहते हो जब आप, या कोई टीवी सीरियल देखते हो, तो एट दैट टाइम व्हेन यू सी कि वहाँ पे मूवी चल रही है और वो चल रही, तो कई जगह आपको लगता है अरे अभी कहाँ से कहाँ कर दिया, फालतू हो गया, है ना। और कई बार आपको लगता है अरे कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। जैसे बाहुबली देख रहे थे तो कब खत्म हो गया, आप बैठे हुए देख रहे हो कि अब तो खत्म नहीं हुई। और कई मूवीज में आप बार बार घड़ी देखते हो ना, लंबा खींच रहा है, होता है कि नहीं होता ऐसा। सो दैट एक्चुअली हैपेंस विद द राइटर्स ऑल्सो, क्योंकि व्हाट इज फिक्शन, फिक्शन ड्रामा ये सब पे ही तो मूवी बनती है, ठीक है। दैट इज द मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न फिक्शन। तो जब आप डिकन्स के लिए एक्चुअली आई वुड लाइक टू से दैट डिकन्स प्लॉट इज वेरी वेल रिटेड। आपको बिल्कुल बाहुबली जैसे समझ में नहीं आता कि कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, आप इतना उसमें घुस जाते हो। जैसे भी आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग शेक्सपियर ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो पढ़ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टेल मी वेरी फ्रेंकली, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बस शेक्सपियर तो बिल्कुल वही होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो पता नहीं चलता कि कब वो चीज़ खत्म हो गई। तो डिकन्स का क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकन्स ऑटोबायोग्राफी, जो आपको लिखना है, ह्यूमर एंड पैथोस, एंड देन कम्स द वेल दिस थिंग प्लॉट,
द थीम्स आर ऑलवेज ऑन द रियल साइड. एंड देन जो मैं रियल आपको बोलते थे, द रियलिस्टिक पिक्चर कैसे शो करता है, यू सी व्हेन आई टोल्ड यू दैट इन 19th century there was it was a very golden era. You see all the things were developing, all the things were flourishing, सब हो रहा था. तो whenever you know, so when the one side of the society goes up, the second side comes down. जब आदमी एक तरफ से उन्नति करता है ना कोई चीज़ हैम्पर होती है. ये उसूल है. दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर. सो व्हाट हैपेंड हियर विद द डिकेंस एट द 19th century, when everything was going perfect, and everything with the simplicity of the language, with the simple words, with the simple characters, with the simple realistic characters, simple plots, all the things were becoming very popular. ठीक है, इट वॉज वेरी गोल्डन एरा. इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सब लोग वो कर रहे थे. लेकिन लोग पैसा कमाने में बच्चों पे और औरतों पे ध्यान देना भूल गए. तो किसका कंडीशन उस एज में खराब हो रहा था? एक तरफ सोसाइटी ऐसे प्रोग्रेस कर रही थी, बच्चों की और औरतों की कंडीशन नीचे जा रही थी. तो उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है. एक तो ये पहलू है. सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन इज कि जब मैंने कहा कि जब सोसाइटी बहुत फ्लरिश करती है तो और भी कुछ चीज़ें नेगेटिव भी उसके साथ आती हैं. ठीक है ना. तो जब इट वॉज फ्लरिशिंग अलॉट, उस समय क्या फिर उसमें साथ में बढ़ा? करप्शन. ठीक है. अब करप्शन से मेरा मतलब पैसे से नहीं है. द लव फॉर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. पैसे को इतनी अहमियत मिलने लगी. द मटेरियलिस्टिक थिंग्स वर गिवन सो इम्पोर्टेंस, द रियल थिंग्स वर बी इग्नोर्ड. फिर मैंने आपसे क्या क्या पर्पस क्या होता है उसका, जो मैंने बीच में छोड़ दिया था राइटर्स का. जब वो मिरर ऑफ द सोसाइटी और आपको दिखाते हैं, सो देयर मेन पर्पस इज टू ब्रिंग आउट द फॉलीज ऑफ द सोसाइटी अमंग यू इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू रिमूव इट. क्या उनका पर्पस है? कि वो जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको आपके सामने लाते हैं वो लोग, बिकॉज दे शो यू द मिरर. ओके. एंड दे ट्राइज टू रिमूव इट. एक मैसेज देते हैं टू रिफॉर्म द मैसेज ऑफ रिफॉर्मेशन. व्हाट इज रिफॉर्मेशन? अच्छाई के लिए चेंज होना. दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन. तो वो एक मैसेज देते हैं. और डिकेंस क्या करते हैं? अपने इसी से जब वो बताते हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से चल रहा है, हमारे यहाँ बच्चों के साथ ये कंडीशन है, लेडीज़ के साथ ये लेडीज़ वर ट्रीटेड लाइक द स्टेटस सिंबल. बच्चे जो थे, चाइल्ड लेबर उसी समय शुरू हुआ. उसी समय से उनको छोटे छोटे बच्चों को काम करने भेजा गया, बिकॉज देयर वाज सो मच मनी कि लोगों को लगता था हर मेंबर ऑफ द फैमिली शुड अर्न. पैसा सब तरफ दिख रहा था, तो जितने लोग कमा सकें जितना, मतलब वो एक माइंडसेट हो गया था. ठीक है. बाद में रिफॉर्मेशन हुआ तो ये सब चीज़ें उस समय चलती गई. तो दैट इज एक्चुअली द डिकेंस. ठीक है. तो डिकेंस का जो नॉवेल है जो आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज. दैट इज एक्चुअली अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ नॉवेल. उसमें उन्होंने दूसरा एंगल लिया है. इट इज अ रियलिस्टिक नॉवेल, बट इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैच्योर पर्सन. उसमें बच्चों का वो नहीं दिखाया है. बट इफ़ यू स्पीक अबाउट डिकेंस एज अ राइटर, तो आपको ये सब चीज़ें उसमें अपने आंसर पे लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो जो इसकी नॉवेल है, जो इसकी स्टोरी है, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू.